श्री वाहिगुरु। पैरों महला पंजवां। संत मंडल में हर मन वसै, संत मंडल में दुर्त सब नसै। संत मंडल में निर्मल रीत, संत संग होए एक परीत। संत मंडल तहाँ का नाओ, पार ब्रह्म केवल गुण गाओ रहो। संत मंडल में जन्म मरण रहे, संत मंडल में जम किछु ना कहे। संत संग होए निर्मल बाणी, संत मंडल में नाम वखानी। संत मंडल का निश्चल आसन, संत मंडल में पाप विनाशन। संत मंडल में निर्मल कथा, संत संग होमें दुख लथा। संत संग होमें दुख नसा, संत मंडल का नहीं विनाश। संत मंडल में हर गुण तास। संत मंडल ठाकुर विश्राम, नानक पोत पोत भगवान। संत मंडल ठाकुर विश्राम, नानक पोत पोत भगवान। गुरु की प्यारी सत्कार योग सत्संगत, आप सारे आश्रम निर्मल कुटिया शाहपुर तरनताਰਨ सच्ची विखे शामां दी क्लास दे विच हर रोज की तरह सत्संगत के रूप में जुड़ के बैठे हैं। और कल संग्रांद का दिन सी, इस वास्ते 12 बजे तो लैके 2:30 बजे तक सारिया संगतां ने कुटिया ते अथवा लाइव कथा कीर्तन ते बाणी का आनंद लिया। इस करके कल शामां दी क्लास जेड़े कुछ नवे लाइव स्रोते जुड़ते हैं, शायद उन्होंने ना पता होए, कल दी क्लास शाम की इस करके नहीं लगी सी। अज तुसीं जिन्ने भी स्रोते लाइव जुड़े हो, असीं कुटिया वालों आप सरबत संगत का धन्यवाद करते हैं जी। आओ प्यार सहित हाजरी लवाओ, गुरु साहब कृपा करन। असी निर्मल पंथ की गौरव गाथा का महान गौरवमयी इतिहास
ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਓ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ, ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੜੀਵਾਰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਨਿਰਮਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਖਾੜਾ ਕੰਖਲ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਦੀ ਮਹਾਨ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਿਰਮਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤਿਅੰਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਬੜੇ ਵੀਤਰਾਗ, ਵਯੋਵ੍ਰਿਧ, ਵਿਦਵਾਨ, ਤਿਆਗੀ, ਦਰਸ਼ਨੀ, ਮਹਾਨ ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਮਹਾਤਮਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਨਿੱਘਾ ਪਿਆਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੋਇਆ। ਰਿਆਸਤ ਪਟਿਆਲਾ, ਰਿਆਸਤ ਜੀਂਦ, ਰਿਆਸਤ ਨਾਭਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਚਤੁਰਮਾਸ ਵਾਸਤੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਬਰਸਾਤੀ ਦਿਨ ਜੋ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਜਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਮਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੁਛ ਗਿਆਨ, ਕੋਈ ਸੋਝੀ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਕਾਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਅਤਕਥਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦਿਆਲੂ ਮਹਾਤਮਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਹਰੇਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਮੰਡਲੀ ਸਹਿਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕੀਤੇ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਠਹਿਰਾਓ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ 2 ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਲਗਾਉਣਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣਾ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਨਿਰਮਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਪਬਲਿਕਸਿਟੀ, ਬਹੁਤੇ ਸਾਡੇ ਨਿਰਮਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਮੂਥ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ
चलते आ रहे हैं। सो लास्ट विच महापुरख निहाल करते हुए भवानीगढ़ जिथे साध संगत संगतां नूं मिले, राजे महाराजे मंत्रियों ने असीसां लईआं, महापुरखां नूं विदागीर दित्ती। सो शहर निवासी हज़ारां संगतां ने एकत्रित होकर के गुरबाणी का कीर्तन ते कथा का आनंद माणिया। ये प्रसंग सारा आप जी बड़े प्यार नाल सरवण कर रहे सी। अगे लड़ीवार जो प्रसंग आ रहा है, आप जी एकाग्रता नाल मन बिरतियां चित जोड़ के सरवण करो जी। जिन्हें लाइव स्रोते इस वेले जुड़े हैं, मैं बेनती करांगा कि अगे होर संगतां नूं ये प्रसाद वंडण लई तुसी लाइक करो, शेयर करो, ताकि होर भी हज़ारों संगतां इस महान निर्मल पंथ की गौरव गाथा का आनंद माण सकण। साडे वड वडेरे पुरखियां दे सानू सरवण दर्शन हो सकण। सो आप जी का धन्यवाद कि आप इस सेवा कर रहे हो, हर एक संगत नूं जोड़न दी। आओ प्यार सहित अगला जो प्रसंग है उसनूं सरवण करो जी। सारियां संगतां आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरू। एक दिन महाराजा पटियाला पति जी ने श्री महंत जी महाराज के चरणों में बेनती की कि नाभा जींद के महाराजियां समेत असी सदीवी दान करना चाहते हैं। सदीवी मतलब कि जिवें हरमंदर साहिब आप जी नूं पता है कि बड़े ही रहीस लोगां, राजा महाराजा बहुत लंबे समय तो माया जमा की हुई है, उस दे व्याज दे नाल अमृत वेले दा कड़ा प्रसाद की देग दा भोग लगता है। हुण तो खैर आप जी सरवण नहीं करते, नहीं तो अरदासीए सिंह पूरी लंबी लिस्ट जिहड़ी है ना, उस सत्कार नाल सारा नाम लैंदे सन जिन्हां जिन्हां ने उस सेवावां कीतियां। सो इस प्रकार पुरातन जेड़े राजे महाराजे हुंदे सन, जिवें कि महाराजा रणजीत सिंह जी ने हरमंदर साहिब सचखंड ते सारे सोने की सेवा की, जिसनों अंग्रेजी विच लोग, गोरे लोग या विदेशी लोग स्वर्ण मंदिर कहते हैं। वास्तविक तौर पर तो हरि मंदिर है। खैर मतलब सेवावां कीतियां अनेकां, बड़े सुंदर सुंदर दुशाले, चंदोए, चौर साहब, इस प्रकार गुरु घरां दे विच बड़ियां बड़ियां सेवावां जिन्हां नूं सतगुरां ने मेहर की। हर एक बंदा ये नहीं कर सकता। अज दे तुसीं सियासी लोग राजे देखो, लै लैणगे कुछ, गुरु घर विच दे नहीं सकते। शायद इन्हां लोकां दे साध संगत पेट ही नहीं भरे। खैर उन्हां सारियां राजियां ने पटियाला पति, जींद, नाभा आदि सारियां ने बेनती की महापुरखां नूं कि असी कुछ ये सेवा करना चाहते हैं। विचार है कि विधिवत निर्मल पंचायती अखाड़े की सदीवी आर्थिक सहायता की जाए। बहुत चंगी गल है। असल सेवा तो थां इहो ही पैंदी है ना। हुण महापुरखां ने किते अपनी शानो शौकत वास्ते थोड़ी ये सब कुछ वरतना सी, उन्हां ते धर्म प्रचार वास्ते सारा कुछ लगाउणा सी। ते असल सेवा तो यही हुंदी है। सा सेवा कीती सफल है जित सतगुर का मन मन्ने। या सतगुर का मन मन्निया तो पाप कसम मन मन्ने। सो इस वास्ते उन्होंने ये परामर्श किया जिस नाल सारे तीर्थां, कुंभां ते रहायश, लंगरां, कथा कीर्तन ते धर्म प्रचार होवे ते उस ते सेवा लगे।
पूज्य श्रीमान जी महाराज ने श्री महंत हीरा सिंह जी ठीकरी वालियां नाल विचार करके इस प्रस्ताव को पास प्रवान कर लिया। आप जी को याद होवे कि सत्कारयोग बाबा जी बाबा वीर सिंह जी महापुरख औरंगाबाद वालियां दे पास पहली बार लाहौर तो महाराजा रणजीत सिंह आए सी तो उन्होंने कहा सी महाराज आप जी दे लंगरां दी सेवा दे वास्ते मैं कुछ रस्त या माया भेंट करना चाहना। महापुरखों ने मना करता सी, बेपरवाह साधु होंदे ने, ये नहीं कि राजिया ने कह दिता है तो वह प्रवानगी दे देन। उन्होंने महापुरख बाबा हीरा सिंह जी दे नाल सलाह की, जदों उन्होंने आख्या सतबचन जी, फिर जा करके महापुरखों ने प्रवानगी दी। इस तो बाद 2 दिन एकत्रतावां करके महाराजा पटियाला, महाराजा नाभा, महाराजा जींद, तिन्ना महाराजियां दी प्रतिनिधा ते पूज्य श्रीमान जी महाराज दे प्रतिनिधा ने संस्था का नाम, नियम, उपनियम 10 तुरुल अमल मिल के तैयार किए। श्रीमंतां दी पदवी बारे, मुखिया महंतां ते होर कर्मचारियों बारे, कुंभ मेलियां ते खर्चे संबंधी, क्योंकि जिवें साध संगत मंत्री मंडल हुंदा है वो सारियां दियां आपो अपनियां ड्यूटीज़ हुंदियां ने। इस प्रकार महापुरखों ने देखा कि हुण ये प्रचार प्रसारण इस प्रकार चलना है, तो फिर उन्होंने ये सारिया मीटिंगां कीतियां भी किवें किवें कारगुजार सारा किया जाए। सो यथा योग नियम बनाए गए। 2 दिन की विचार विमर्श तो बाद महाराजियां ते श्रीमान जी महाराज नूं सुना के प्रवानगी लई गई। साध संगत ये तो पुरातन जिहड़ी गाथा है, अज दे राजे, अज दे मंत्री, अज दे मुख मंत्री सरवण करन, उन्होंने पता लगे तुहाडे पूर्वज जिहड़े पिछले राजे सन वो किवें संतां महापुरखां दे श्रद्धालु सन। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। राजकाज भी साध संगत बड़े अनुशासन पालन हुंदे सन। अज की तो धक्काशाही चल रही है। सो किस प्रकार उन्होंने राजिया महाराजिया ने महापुरखों नूं प्रेरित करके ते महापुरखों उन्होंने नाल लैके विचार वटांदरे कीते, ताकि इस धर्म प्रचार नूं करन लई भाई कि राजे महाराजियां दा हक नहीं बनता कि साडे देश दे विच, साडियां प्रांतां दे विच जिहड़े महात्मा, महापुरख, विद्वान, तपस्वी प्रचार करते हैं, ये भी तो एक बहुत वड्डी श्रेष्ठ जॉब है। जे बाकी दे सारे कामां नूं असीं सोचते हाँ बई अनुशासन कानून अकॉर्डिंग चलना चाहिए, तो धर्म प्रचार तो सब तो सिरोपरी है। इहदे नाल ते प्रजा नूं ते प्रजा पालकां नूं सोझी आउणी है। हुण कोई राजा महाराजा मंत्री संतरी कोई होवे कहे मैं आज़ाद हाँ जो मर्जी करा, तो हो रहा वो हो रहा। वास्तविक तौर पर की है कि धर्मात्मा महात्मा दे अनुसार जिहड़े राजे महाराजे अनुशासन लागू करते हैं, साध संगत तो बड़े ही एक समूथ राज होंदे ने, असीसां होंदियां। आप जी नूं पता होवे कि पुराने इतिहास जे खोजे पढ़े सुने होण, आपां राजियां महाराजियां दे बच्चे 12-12 साल तक गुरुकुलां दे विच रह करके साध संगत उथों दी लियाकत, विद्या, निमरता, सेवा, सूरबीरता, बहादुरी, न्याय सारे गुण संपन्न हो के साध संगत जदों राजकुमार राजगद्दी ते बैठते सन, तो फिर ऐं लगता सी कि जिवें राज काज सारे राम राज होया। अज तक रावण राज है।
इस तो बाद अखाड़े की स्थापना करने वास्ते द्वादशी दिन गुरुवार वीरवार संमत 1919 1862 ईस्वी का शुभ दिन नियत किया गया। इस इतिहासक समागम नूं सफल बनाउण वास्ते श्रीमान जी महाराज ने महंत बाबा हीरा सिंह जी ठीकरीवाला नूं कह के सारे निर्मल पेख नूं पटियाले पुजण वास्ते पत्र लिखवा दिते। इसी तरह महाराजा साहब के नाभे जींद भदौड़ मलोड़ फरीदकोट छछरौली खमाणवाद महाराजियां राजियां रईसां सरदारां नूं इस समय पटियाले पुजण वास्ते पत्रिका लिख दी। पुराने इतिहास साथ संगत सरवण करो किवें किवें ये धर्म प्रचार दीयां नीतियां होंदियां सन। निर्मल भेग दे मुखी महंत संत विद्वान महापुरख कई दिन पहला ही पुज गए। महाराजे ने अपने मंत्रियों ते एहलकारां नाल विचार विमर्श करके चनार थलियां वाली हवेली विखाई ताकि पटियाले विच अखाड़े की मुख शाखा कायम की जाए। ये तो अज के कैप्टन साहब नूं भी साध संगत इन्हां इतिहासां नूं पढ़ना वाचना चाहिए ताकि पंजाब का जो जरखेज इलाका है पता नहीं किन्नियां मारां पईयां पंजाब नूं पर फिर भी पंजाब हरा भरा गुरुआं दी किरपा नाल इन्नियां मारां सह के भी सेवा सिमरन परोपकार दान पुण्य पंजाब विचों बड़े बड़े लिखारी मुसवर सिंह सूरमे बहादुर भगती भाव वाले त्यागी नाम रसीए साध संगत बड़े बड़े कवि ढाडी प्रचारक बड़े बड़े लिखारी फिर भी पंजाब अज तक भी दे रहा है। ये गुरु साहब की बड़ी एक महान कृपा है। सो महंत गांधा सिंह जी बरनाला आदिक महापुरखा ने इस हवेली नूं प्रवान करके हवेली की इमारत रस्ते बारे विस्तार पूर्वक दस्या। सुन के श्रीमान जी महाराज ने भी प्रवानगी दे दी। ध्यान दियो नियत दिन ते शुभ मुहूर्त विच सावन सुदी द्वादशी दिन वीरवार 1919 नूं 12 दरी तो हवेली विच प्रवेश वास्ते निर्मल भेग दा जलूस रूप विच अगे आतिशबाजी चल रही सी, बैंड वज रहा सी, गतका पार्टियां अपना हुनर विखा रही सन। किड्डा सुंदर माहौल होएगा। रण सिंगियां दी कणकोर पै रही सी, केसरी निशान चुल रहे सन। वाह वाह धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हाथी उपर सुशोभत सन। साध संगत किन्ना निर्मले महात्मा महापुरख शुरू तो ही धन गुरु ग्रंथ साहिब जी का सत्कार करते हैं। सत्कार ही नहीं करते, प्रचार करते ने, प्रचार ही नहीं करते, अपने जीवन ते अमल भी करते हैं। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। सारी संगत आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। श्री महंत हीरा सिंह जी चवर कर चला रहे ने। श्रीमान जी महाराज वखरे हो हाथी ते दर्शन दे रहे हैं। कुछ छोटी आजू दे संत माटो फड़ के चल रहे हैं जिन्हां ने लिखिया सी मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया। मतलब माटो फड़े हुए ने अगले बार। निर्मल भेग अपार तास बिन अवर न कोई। प्रगट भई सगले जुग अंतर गुरु नानक की
वडियाई। इस तो मगर कई 100 महंत संत पंडित विद्वान विरक्त भगवे वस्त्रां विच सुशोभित शांत चित सतनाम वाहिगुरु दा जाप करते चले आ रहे सन। मिथे समय ते सत श्री अकाल दे जकारियां नाल हवेली विच प्रवेश कीता अते स्वागत विच महाराजा नरेंद्र सिंह जी पटियाला पति अपने सपुत्र युवराज महिंदर सिंह अते मंत्री मंडल सहित हाथ जोड़ के खड़े सन। इसी तरह महाराजा भरपूर सिंह नाभा, महाराजा स्वरूप सिंह जी जींद, सरदार लैणा सिंह जी रहीस कलसियां स्टेट, भदौड़ मलौद खमाणों आदिक दे राजे रईस सरदार सब सनिमर सिर झुका के खलोते सन। श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का अखंड पाठ चल रहा सी। श्रीमान जी समेत सब नमस्कार करके बैठ गए। अखंड पाठ की समाप्ति की अरदास पंडित तारा सिंह जी नरोत्तम ने की। किड्डे चोटी के विद्वान साने महापुर आप जी पिछे इन्हों बारे सरवण करके आए हो कि इन्होंने किन्नियां धार्मिक पुस्तकां ते किन्ना गुरबाणी का खजाना सिख संगतां नूं दिता। साध संगत भुल्लण योग नहीं। इन्होंने अरदास की थी। महावाक श्रीमान पंडित राम सिंह जी कबेरिया ने लिया। उपरंत कार्रवाई आरंभ की गई। साध संगत ध्यान रहे, हरेक गल नूं ध्यान विच लाओ कि देखो कोई भी मीटिंग सलाह मशवरा करना, महाराज जी की बाणी का प्रकाश करना, अखंड पाठ साहब होना, अरदास करनी, हुक्मनामा लेना, उस तो बाद साध संगत मैनेजमेंट की प्रारंभता करनी। इनू कहते ने मर्यादा अनुसार जीवन कटना। क्यों ना कृपा हो। मैं कहना अज भी हमेशा इस तरह ही चाहिए। जिथे जिथे धन गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश है, बा इज्जत सतगुरां की सेवा संभाल चाहिए है। महाराजा पटियाला पति के सकत्तर ने खड़े होकर दसिया, अज का यह समागम गुरु नानक देव जी की बाणी सिद्धांत के प्रचार वास्ते, धर्म उपदेश वास्ते, तीर्थां दे अते देश भर के पिंडां विच शुभ उपदेश देण वास्ते, कुंभ मेलियां उत्ते नानक पंथी गुरसिखां की रहायश वास्ते, तिन्हां सरकारां दे प्रस्ताव अनुसार एक संस्था कायम की जाती है, जिसका प्रबंध निर्मल भेख नूं संभालिया जाता है। ये भेख पिछलियां कई सदियां तो सिक्खी अते धर्म का प्रचार करता आ रहा है। ये महापुरख गृहस्थी नहीं हुंदे हन, जिस करके गबन का भी कोई डर नहीं हुंदा। गृहस्थ जीवन विच हुंदा है कि जिवें साध संगत कोई भी धार्मिक प्रॉपर्टी बनी है, संगतां दी डोनेशन तो अगे पुत्र वारस हो जाए, पुत्र दा अगे पुत्र वारस हो जाए, हक रखेगा ये मेरे पिता का डेरा है। महात्मा गृहस्थी नहीं सी। आज लोग पूछते गृहस्थ धर्म सब तो उच्चा है, गृहस्थी क्यों नहीं सी हुंदे? भलिओ सतगुरां ने दोनों मार्ग दसे ने। कबीर गृह करे तो धर्म कर, नहीं तो कर बैराग। ये जरूर किया बैरागी बंधन करे ताको बड़ो अपार। सो इस संस्था का नाम पंचायती अखाड़ा निर्मला होवेगा। ये कह के सकत्तर बैठ गया। इस समय महाराजा नरेंद्र सिंह जी ने अपने सपुत्र युवराज महिंदर सिंह नूं नाल लैके श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के सम्मुख होकर 82,000 रुपये नगद भैणी अते झंडी दे पिंडां दी
4100 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁਆਫੀ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। इस समय महाराजा नरिंदर सिंह जी ने उत्साह विच आनंद विभोर होके अपने सकत्तर या अन्य अधिकारी के बजाय स्वयं ही विख्यान देना शुरू कर दिता। अपना मंत्री ने अगे किया भी ये बोलेगा, आप महाराजा खड़ा होके निम्रता सहित हाथ जोड़ के माया जो कल्प बिरछ दा पौधा अज लग रहा है, इसनू हरा भरा रखण वास्ते केवल पूज्य श्री महंत जी समर्थ हन। मैं प्रार्थना करदा हाँ कि जिस तरह भेख ने बाबा जी नू श्री महंत दी पदवी ते प्रतिष्ठित किया है, इसी तरह बाबा जी इस पावन पदवी ते आजीवन प्रतिष्ठित रहणगे। मेरे इस प्रार्थना नूं बाबा जी ने निर्मल भेख बाबा जी ते निर्मल भेख प्रवान करनगे। महाराजे दा इह विख्यान सुन के महंत हीरा सिंह जी ठीकरी वाला, महंत गांधा सिंह जी बरनाला, पंडित तारा सिंह जी नरोत्तम ते होर अनेकां महापुरखां ने करमवार समर्थन अते अनुमोदन किया। पूज्य ब्रह्म ज्ञानी श्री 108 सत्कारयोग बाबा जी बाबा महताब सिंह जी नू सरदारां, राइसां, संतां, महंतां, विरक्तां ने सत्कार पूर्वक पूजा की। पूजा भाव कहण तो किस सेवा दित्तियां। इस दिन महाराजे दे विशेष हुक्म द्वारा पटियाला रियासत विच एक दिन की छुट्टी की गई। छुट्टी करन नाल साध संगत पता लगता है कि ये छुट्टी करन दा कारण की है। हरेक रहन वाले जीव नूं पता लगता है कि इस करके छुट्टी की गई है। भाव कहण दा कि उस दिन सारा निश्चित होया ते संत महंत महापुरख इकट्ठे होए। उस दिन ते उन्होंने सारे राज विच छुट्टी की ताकि सारे राजवासियों नूं पता लगा। विशेष उत्सव मनाया गया। सैनिक परेड, तोपां दी गर्जना व आतिशबाजी छड्डी गई। गरीबां विच अनेक तरह दीयां मठियाइयां वंडियां गई। रात नूं दीपमाला की गई ते कैदी रिहा किए गए। बस अखाड़े की स्थापना की प्रसन्नता विच महाराजे ने उल्लेखनीय उत्सव मनाया। महाराजा भरपूर सिंह नाभा वालों 16,000 रुपये नगद, साध संगत उस टाइम ते 16,000 इस वेले दे 16 करोड़ के बराबर होएगा। नगद अते हरी के पिंड की 575 रुपये की मुआफी। महाराजा स्वरूप सिंह जी जींद वालों 20,000 रुपये नगद, बलमगढ़ अते मंडलों वाला 2 पिंडां की 1300 रुपये की मुआफी। महाराजा वजीर सिंह फरीदकोट स्टेट वालों 500 रुपये की सालाना आमदनी वाला पिंड चमेली अरदास कराया गया। सरदार लैणा सिंह जी कलसियां स्टेट ने 200 रुपये वार्षिक का अरदासा कराया। इसी तरह भदौड़, मलौद, खमाणो आदि सरदारा ने सेवा दे अरदासे करवाए। इस समय ही देश प्रदेश विच नाम बाणी गुरमत ते धर्म प्रचार वास्ते एक होर चक्रवर्ती वहीर की स्थापना की गई, जिसका नाम रम्मत पंचायती अखाड़ा निर्मला, जिमें कि निहंग सिंघां विच कहंदे ने दल पंथ। दल पंथ कित्थे है जी? दल पंथ यूपी च है जी, हरियाणे च है जी, इस वेले दिल्ली है जी।
इस प्रकार निर्मले महात्मा दा इस दा नाम रखिया रम्मत पंचैती अखाड़ा निर्मला। मतलब कि एक जमात निर्मले महापुरखों की देश विच चक्रवर्ती रह के धर्म का प्रचार करेगी। दास इन्हां समयां विच भी दर्शन करता रहा कि जदों ये रम्मत विचरती रही, हाथियां ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के स्वरूप दास ने बचपन विच दर्शन किए। बड़े बड़े विद्वान महात्मा पिंडां विच विचरदे धर्म का प्रचार करते। अज खैर अस्थानां ते भी इस तरह प्रचार चल रहा है, कुछ घट भी है, परंतु ये रम्मत विचरती रही। कोई समय तो ये रम्मत नहीं चल रही। यात्रा भार बरादरी वास्ते 6 ऊठ 5 घोड़े, तंबू कनाता, लंगर दे बर्तन, समान देना नियत होया। रम्मत अखाड़े दे 4 मुखिए महंत निश्चित किए गए। श्रीमान महंत निहाल सिंह जी गुरु कांशी दमदमा साहिब, श्रीमान महंत कांत सिंह जी गंदियां वाले, श्रीमान महंत करम सिंह जी विरक्त, श्रीमान महंत भोला सिंह जी छन्ना वाले। ये 4 महापुरख निश्चित किए गए ताकि ये रम्मत चलाउण दा प्रबंध सारा करनगे। महात्मा बाबा मेहताब सिंह जी ने सरकार से इस तरह बयान किया। ये मसौदा दस्तूरुल अमल उर्दू विच ये सरकारी मोहर है जो आप जी को सरवण करवाई जा रही है। महात्मा भाई मेहताब सिंह जी ने सरकार से इस तरह पर बयान किया कि साध सन्यासी बैरागी उदासी श्री गंगा जी और पराग वगैरह पर बमौके मेले राय अपने अपने अखाड़िया में जुदा जुदा भंडारा करते हैं। चूँकि इस भंडारे करने का पुण्य और धर्म बहुत है, अगर सरकार से इस धर्म की मर्यादा कायम हो जावे तो बहुत मुनासिब है। चुनांचे सरकार को ये हदायत भाई साहब मौसूफ बहुत पसंद आई, लिहाजा सरकार से वास्ते मुसारफ इस धर्म मर्यादा को 2 साल तमाम अजरू सनत अलहिदा मिति सौन सुदी 12 साल 1919 माफ व मरकूल कलम किए गए। सारा उर्दू विच है। और चूँकि कायमी इस मर्यादा की बनज़र होने का स्वाब और धर्म अर्थ की सरकार को आज तय दिल मंजूर है, लिहाजा यानी सरकार से 82,000 रुपये 1 लाख बतौर पेशगी। तुसीं देखते हो जिन्नियां पुरानियां हुंडियां या पुरानियां रजिस्ट्रियां उन्हां ते इस तरह उर्दू लफज भाषा लिखी हुंदी है। उस टाइम ते उर्दू लंडे आदि बहुत फेमस सन। पेशगी ब अंदाजे आमदनी 20 साल मुआवजा मज़कूर अलावा अज आमदनी देहात मज़कूर दिया जा कर इतफाक व सलाह चाचा साहिब राजा स्वरूप सिंह साहिब बहादुर वाली जींद व बहादुर अजीज़ राजा भरपूर सिंह साहिब बहादुर वाली नाबा ये दस्तूरुल अमल वास्ते अमल दरामद आइंदा इस धर्म मर्यादा के बौ इंदराज दफियात
मुफसला ज़ैल मुकर्रर किया गया ताकि बमूजब इसके अमल दरामद होता रहे, इसके खिलाफ अमल में न आवे। दफा पहली भाई साहब महात्मा बाबा महताब सिंह जी मालक अखाड़े के हैं। इब्रार लिखत है, उनके पीछे से इनका जाननशीन मालक होगा। इसे प्रकार परंपरागत जिवें टकसालां दे मुखी, इसे तरह निर्मले महात्मा दे इस अखाड़े दे मुखी महापुरख होए। दफा 2, जो 82,000 रुपये बतौर पेशगी 20 साल बनज़र इजराए कारोबार धर्म अर्थ अखाड़े धर्म ध्वजा सिखान व साधान निर्मला पंथ गुरु खालसा जी दिए गए। चाहिए कि हर चाहार महंतान मुकर्ररा अज आमदनी सूद व तजारत वगैरह व्यापार उसके यानी कारोबार मुतला अखाड़ा मौसूफ व तमीर मकानात जारी रखे और जमा असल से शर्फ ना करे। मतलब है कि जेड़ी सारी ये माया दी गई है ये धर्म प्रचार वास्ते ही वरती जाएगी, ना कि कोई इसनों अपनी प्रॉपर्टी मनेगा। दफा नंबर 3, बंदोबस्त व निगाहदाश्त खजाना अखाड़ा जुम्मे हर एक महंत अखाड़े के रहेगा और भाई साहब को कुंजी खजाने की जिसके पास रखनी मंजूर होगी, भाई साहब मतलब जो श्री महंत होंगे उसके पास रहेगी। दफा नंबर 4, जो सिख साध अखाड़े में होवे पहले उनसे ऊपर श्री गुरु ग्रंथ साहब के हाथ लगवाया जावे। साध संगत हर एक प्रबंध विच श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की प्रवानगी जरूरी है। मतलब कहने का है कि 10 गुरुआं का जीवन 10 गुरुआं का स्वरूप धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी ते धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के अनुसार महात्मा महापुरख बाणी का प्रचार करते। सो दफा नंबर 4, जनाब बाबा साहब भाई बाबा महताब सिंह जी को अख्तियार हासिल है कि अपनी मर्जी और सलाह से बदली सदली महंता की करते रहे भी ये उन्होंने हक हकूक पूर्ण होंगे। दफा नंबर 5, जो सिख साध अखाड़े में होवे पहले उनसे ऊपर श्री गुरु ग्रंथ साहब के हाथ लगवाया जावे कि रुपया अपने पास ना रखे। मतलब कि हाथ लगाने का मतलब भी सौं खाओ कि ये पैसा तुसी अपने वास्ते नहीं वरतना, ये सारी माया धर्म प्रचार वास्ते है। मैं कहना कि राजे महाराजे भी धनता के योग सी ते महात्मा भी धनता के योग सन, जिहड़े गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह जी के चरणों विच ये हाथ रख के कहते सन कि सारी माया जिहड़ी है ये धर्म प्रचार वास्ते लगेगी। जो जिसके पास होवे खजाने में दाखिल कर देवे। दफा नंबर 6, जो कोई सिख अच्छा और लायक होवे भाई साहब उसको औहदा महंती और दूसरे कारोबार अखाड़े पर मुकर्रर करे। जो कोई रहतनामे से बरखिलाफ होवे वास्ते मौकूफी और सजाए उसकी कि भाई साहब को अख्तियार है भी कोई भी इस मैनेजमेंट विच महापुरख या कोई साधु महंत किसी तरह की कोई बरखिलाफी करे, श्री महंत साहब जी नूं ये अधिकार होएगा कि वो उसनूं मूव कर सकते हैं। दफा नंबर 7, भाई साहब मौसूफ अपनी जिंदगी में जिसको अपनी जगह
कायम किया चाहे बसला व तजवीज़ तीनों सरकारों के मुकर्रर करे। दफ़ा नंबर 8 ये सारियां शर्तां लिखियां गई बसूरत के बाद भाई साहब के उनका जानशीन चरण और रवैये से अच्छा नहीं होगा तो वास्ते मकूफ़ी उसके और कायम करने बजाय उसके तीनों सरकारों को अख्तियार हासिल होगा कि जेड़े ये राजे सन तिने बई जे कोई अगे कोई अच्छा प्रबंध ना चलाए तो ये तिने राजे भी उसनूं बदल सकते हैं। अच्छी गल है। सो दफा नंबर 9 दरबार बंदोबस्त व इजराए कारोबार अखाड़े मजकूर बमुजब दस्तूर अखाड़ा पंचायती के अमल दरामद होता रहे। मिति सौन सुदी 12 साल 1919 मुताबिक 10 सफर सन 1278 हिजरी गुरुवार। इस दस्तूरुल अमल तो इलावा एक दस्तूरुल अमल भाई कान सिंह नाभा ने महान कोश विच 30 दफा वाला भी लिखिया है। निर्मल पेख द्वारा इस उत्ते टीका टिप्पणी हो चुकी है। भाई साहब भाई कान सिंह जी नूं महंत बुड्ढा सिंह जी ऋषिकेश वालियां ने समस्त निर्मल समाज वालों अते अपने वालों एक चिट्ठी लिखी सी कि निर्मल अखाड़ा संबंधी तिन्ना सिख स्टेटां ने जो दफा 9 वाले दस्तूरुल अमल कायम किए सन ते जिन्हां दी प्रवानगी 1862 ईस्वी नूं दित्ती गई। इस वेले अखाड़े दे हैड ऑफिस कनखल विच पए हन। उन्हां नाल तुहाडा 30 दफावां वाला दस्तूरुल अमल मेल नहीं खांदा। इस दे उत्तर विच भाई साहब जी ने हेठ लिखी चिट्ठी महंत बुड्ढा सिंह जी नूं लिखी जिसकी हू बहू नकल इस तरह है। श्रीमान महंत जी श्री वाहिगुरु जी की फतेह। महान कोश की दूजी एडिशन छपन समय धर्म तो ज़्यादा इतिहास विच 2 त्रुटियां रह गई वो पूरी कर दी जाए। निर्मले संतां की सेवा विच प्रार्थना है कि वो अखाड़े संबंधी सही हाल लिख के मेरे पास नाभे भेजण की कृपा करन। नाभा 21 साल 466 17 सितंबर 1935 पंथ का सेवक कान सिंह। सो इस प्रकार पुरातन लिखता हैं सारिया बहुत निशानी कुलवंत राय दीवान। इस दस्तूरुल अमल तो बिना तिन्ना महाराजियां ते श्रीमान जी महाराज की सम्मति नाल होर कोई कई तरह के विधान नियत किए गए। बसंत पंचमी दीपमाला विसाखी गुरपुरब चतुर्मासा कुंभ मेले आदिक पर्वों की वख-वख पूजा नियत की गई। माघ संक्रांति लोहड़ी नूं हेठ लिखी पोशाक भेजनी प्रवान हुई। एक थान रेशमी हलवान दा, एक चादर पशमीने दी, एक रजाई ते एक तलाई गवर्नट दी, एक कुड़ती वधिया कतून वाली जो पुराने कपड़े चलते सन सारे, 2 एक विछौना वधिया, 2 सराहने, 2 जोड़ियां सेज बंद दियां। महंतां संतां नूं दर्जे बदर्जे अनुसार 25 कश्मीरी लोइयां, 25 कुड़तियां बनाती, 25 रजाइयां, 25 जोड़े चरणदासियां। मतलब कि सारा विधि विधान कानून कायदा बनाया गया। तीसरे वर्ष पटियाले विच रम्मत पंचायती अखाड़ा निर्मला दा चतुर्मासा लगना प्रवान किया जिसकी पूजा हेठ लिखे अनुसार नियत हुई। श्री निर्मल पंचायती अखाड़ा निर्मला दा हैड ऑफिस कनखल विखे प्रवान होया। इस वास्ते महाराजा साहब ने कनखल विखे गंगा जी के किनारे ते बनाई महाराजा करम सिंह दी हवेली अरदास कराई।
ਇਹ ਹਵੇਲੀ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 1876 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਚਨਾਰ ਥਲੀਆ ਵਾਲੀ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਧਰਮ ਤੁਜਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਭਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਧਰਮ ਤੁਜਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਯੁਵਰਾਜ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਗਰੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ 50 ਵਿਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਬੌਲੀ ਗੁਣੀਏ ਮਾਜਰੇ ਵਿਖੇ 50 ਵਿਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਆਮ ਖਾਸ ਬੌਲੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ 1922 ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿਰਮਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਖਾੜੇ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਖਿਜਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਰਮਤ ਨੀਅਤ ਨਿਰਮਲ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਨਿਯਮ। ਰਮਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਵਿਚਰ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਲ ਪੰਥ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਹਰੇਕ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਮਤ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50 ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 20 ਸਾਧੂ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਮੁਖੀ ਮਹੰਤ, 1 ਗ੍ਰੰਥੀ, 1 ਪੁਜਾਰੀ, 1 ਪੰਡਤ ਜਾਂ ਗਿਆਨੀ, 1 ਕੁਠਾਰੀ, 2 ਕਾਰੋਬਾਰੀ, 1 ਸ਼੍ਰੀ ਭੰਡਾਰੀ ਤੇ 1 ਚੌਂਕੀ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਨੰਬਰ 2 ਤੀਰਥ ਦਾਨ ਸੰਤ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਕੁੰਭਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਅਖਾੜੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੰਬਰ 3 ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੋਵੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਖੀ 2 ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਹੰਤ ਸੰਤ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਖਬਰ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨੰਬਰ 4 ਹੁਨਾਲਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਸਿਆਲਾ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੁਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਸਰਦੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਗਰਮੀ ਹੋਏ, ਬਰਸਾਤ ਹੋਏ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਖਮ ਰੁੱਤ ਹੋਏ, ਹੁਨਾਲਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਸਿਆਲਾ, ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੀ ਚਾਂਦਨੀ ਹੇਠ ਉਤਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਾਸ ਕਰਨਾ। ਨੰਬਰ 5 ਹਰ ਥਾਂ 2 ਵੇਲੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਵੇਰੇ ਪੂਜਾ ਤੇ ਸੰਧਿਆ ਨੂੰ ਆਰਤੀ ਹੋਇਆ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਿਰਮਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਖਾੜਾ ਕਨਖਲ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿਖੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਇਨ ਬਿਨ ਬਰਕਰਾਰ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਟੱਲੀਆਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਸੰਖ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਰਸਿੰਗੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਧੌਂਸੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਪੁਰਾਤਨ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਚਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਦੇ ਇਹ ਸਾਜ਼ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਨੰਬਰ 6 ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਭੰਡਾਰਾ ਜਾਂ ਪੂਜਾ ਕਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਇੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਕਰੇ। ਨੰਬਰ 7 ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 1 ਦਿਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਨੰਬਰ 8 ਜਿਸ ਨਗਰੋਂ ਵਿਦਾਇਗੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿੱਚ 12 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮਾਨਣਾ ਕਰੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਜਾਣ। ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਭਰਮਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਵਾਰੀ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣ।
नंबर 9 चौमासे दे 2-3 महीने रियासत विच जां किसी खास वड्डे नगर विच रह के बतीत करने, जिवें कि आप जी ने पहले सरवण किया कि पटियाला वेखे महापुरख खा के समा कटे। नंबर 10 हर थां रोज की पूजा ते विदायगी अलग अलग वही विच लिखी जाया करे, मतलब कि प्रॉपर हिसाब किताब होवे। नंबर 11 अपने खर्च तो इलावा जितनी पूजा बची वो 6 महीनों पिछों कनखल भेजी जाया करे। नंबर 12 हर एक साधु लई जरूरी होवेगा कि वस्त्र वो भगवा ही पहने, नहीं तो घट्टो घट सिर का साफा जरूर भगवा रखे। नंबर 13 भावें रम्मत कितनी दूर होवे पर कुंभ के मौके हरिद्वार प्रयागराज आदि तीर्थों पर पुजना जरूरी होगा। नंबर 14 जितने अहुदियां वाले साधु होण हर एक नूं चंगी कश्मीरी चादर कढ़ी हुई जो रियासतां वालों मिलिया करेगी दिती जाया करे। नंबर 15 हर एक साधु नूं 6 महीनों पिछों वरतारा 2 रुपये का कपड़ा ते 8 आने की सिलाई दी जाया करे। समा सी साध संगत, मतलब है कि ये नहीं कि माया का ही कला पसारा तुरया जाए। 8 आने 2 रुपये असीं सोचते हैं की है, परंतु कि संयम नाल अपना जीवन कटना। दास ने अपने पहले जीवन दे विच जदों महापुरखों के गुरदेव पिता जी के चरणों च आया सी, 1 साल 1 साबण की टिक्की नाल पूरा समा कटिया। थोड़ा जा फेस ते लगा लेना, साबण उस तरह रख लेना, 1 तेल की शीशी, 1 पुरानी दरी जिस दे नाल कम से कम 2-3 साल उस दरी नूं विछा के ही अपना रहन बसेरा किया। कोई तलाई, कोई रजाई, कोई वस्तु नहीं ली। सो ये सारिया मर्यादावां होंदियां। अज भावें सानू सब कुछ मिलता होवे फिर भी कई बार साडियां तर्कां होंदियां ने, लै आ नहीं दिता, आ नहीं दिता। सो 6 महीनों बाद 2 रुपये ते कपड़े की सिलाई वास्ते 8 आने। सत संगत मतलब है कि कला कपड़ियां वास्ते थोड़ी किते चोले सीते होण, मैनू नहीं मिलिया, मैनू नहीं दिता, मेरे कोल है नहीं गा। साध संगत संयम नाल अपना जीवन कटना, मतलब कि इस पासे साडा ध्यान ना रहे, खाण वाले बने, कपड़ियां वाले बने, मतलब है कि साडा ध्यान भजन बंदगी ते धर्म प्रचार वल रहे। आखो सतनाम। नाल ही एक जोड़ा जुत्ती का, साध संगत धोड़े दियां जुत्तियां होंदियां सन उस टाइम ते नाल या पौए खड़ावा महात्मा लोग पहनते सन, जिहदे नाल 6 महीने मजे नाल इक्को जोड़े नूं। अज तक कई बार जोड़ा अज लिया तो कल नूं कहंदे पता नहीं जी कित्थे गया। सो इन्ने संयम दे नाल महात्मा रहा करते सन। हाँ किसी खास काम करन वाले नूं 3 महीनों पिछों भी जोड़ा दिता जाया करे तां कोई हर्ज नहीं। सो रम्मत अखाड़े दे मुखी महंतां लई नियम। नंबर 1 जो साधु महंत रम्मत अखाड़े की सेवा करनी चाहे पहला घट तो घट 3 वरियां लई रहना प्रवान करे। ये नहीं भी अज जावे ते कपड़े लैके कहाँ जावे। नंबर 2 सारे महंत पंच परमेश्वर की सेवा समझ के जमात दे हर एक काम की चंगी तरह निगरानी रखन। नंबर 3 हर एक अहुदेदार या साधु पासों मेल मिलाप नाल काम लैन, रोब नाल नहीं भी मैं मुखिया मानता। नंबर 4 किसी अहुदेदार या साधु का अखाड़े विच थोड़ा जिहा भी अयोग वर्ताव तकन तां उसनूं झट कढ़ देण दा यतन करन। मतलब कि कोई भी प्रबंधक प्रबंध करन वाला किसी वाल कौड़ा भैड़ा वेखदा बिल्कुल गलत है, इसनूं कढ़ देना चाहिए। ये नियम। नंबर 5 रम्मत दे मुतल्लक अते हिसाब किताब की रिपोर्ट 1 महीने पिछों श्री महंतां नूं कनखल भेजते रहन।
साध संगत अज किसी तो वैसे ही पूछा जाए भी तू इन्ने पैसे लै गया सी ते किन्ने वरते ते किन्ने बचे, अगला कहना मैं तो हिसाब मंगदा। मतलब है कि इन्ना होछापन ते वो इन्नी सादगी, सानू ये सुनने का मतलब है कि साडे अंदर भी इस तरह की समूथ लाइफ बने। मैं जदों महापुरखों के पास मंडली च रहा 3 साल रहा 1983 तो 1986 तक, एक बार भी कपड़ा नहीं मंगया, जुत्ती नहीं मंगी, अपने आप महापुरखों ने दिती ते लै लई। ना किसी सतसंगी नूं कहा पासे हो के भी जे मेरे नाल प्यार करदा वे फलानी चीज़ मैनू लिया दे, ना कपड़ा मंगया, ना जुत्ती मंगी, ना बैटरी मंगी, ना पैसा मंगया, ना वस्तु मंगी। सिर्फ जिन्हां दे पास रहिंदे सी उन्हां दी नज़र दे हेठ, जो क्योंकि पैसे की तो लोड़ ही नहीं सी। इस वास्ते साडा भी अस्थानां ते नेम चाहिए भी संगतां नूं आपां वखरे हो के ना आखिए भी मैनू फलानी चीज़ लिया दे, संतां नूं ना आखी, ये बहुत गलत है। सो ये नंबर 5। नंबर 6, अखाड़े विच टिके हुए किसी संत महंत नूं कितों भी कुछ पूजा भेंट मिले तो वह पंचायती अखाड़े की समझी जाए। अज असीं सोचते साडी कमाई है, भेजिया कित्थों गया है, सत्कार कादे वास्ते मिलिया है। साध संगत ही माया साडा दिमाग खराब कर देती। ये सानू अस्थानां ते रहण वालियां नूं इन्हां नियमां की पालना करनी चाहिए। अखाड़े विच टिके हुए किसी संत महंत नूं किते भी कुछ पूजा भेंट मिले तो पंचायती अखाड़े की समझी जाए। साध संगत इहदे नाल की हुंदा कि परिवारक अनुशासन सही चलता है। नंबर 7, जे किसी मुखिए महंत का अखाड़े विच अयोग वर्ताओ वेख्या जाए तो श्री महंत साहब उसनूं कढ़ सकते हैं ते उसकी जगह होर कोई भेज सकते हैं। नंबर 8, कोई जमाती मुखिया महंत 6 महीनों तो पहला अपने निज दे काम ना जाए, जे जाए तो अपने खर्च पुर जाए। मतलब कि जेड़ा प्रबंध करता है चारे मुखिए, अब चौथे दिन नूं कहण मैं जाना दिओ 200 रुपया किराया, मैं कम जाना दिओ मैनू 100 रुपया किराया। मतलब कि 6 महीने तक लगातार वो अपना प्रॉपर सेवा करे, नियम निभाए, जो जाना है तो जो उहदे कोल अपना है उहदे अनुसार हो जाए, नहीं तो जान दी लो। मतलब ये सारियां गल्लां नूं ध्यान च रखिए कि असी अपने परसनल किसी स्वार्थ वास्ते जाइए। चंगा है कि असी धर्म प्रचार धर्म सेवा विच ही लगे रहिए। सो नंबर 9, मुखिए महंत अपनी सलाह नाल कोठारी ग्रंथी ते कारवारी रख सकते हैं। नंबर 10, मुकामी महंतां ते मकानां दी निगरानी रखनी उन्हां दा मुख फर्ज होवेगा। ये रम्मत अखाड़े दे मुखिए महापुरखां दा नियम सी। सो अगे रम्मत अखाड़े दे जिहड़े जग्यासू साधु सन उन्हां दे नियम होणगे, वो आपां कल नूं आचांगे। साध संगत ते सारियां मर्यादावां जिवें कहंदे ना अकाल तख्त दी मर्यादा अनुसार चलो, ये मर्यादा एक साडा अनुशासन है। इहदे नाल परिवार प्रचार एक समूथ चलता है, एक कानून कायदे च चलता है। जे हरेक बंदा अस्थान ते रहन वाला आपो अपनी गद्दी ला के बैठे आपो अपनी मर्जी करे, ये सरासर गलत है। जिथे असी रहना है उत्थों असी पढ़ाई दवाई बस्तर कपड़ा खाना पीना दुख सुख हरेक साडा जद उत्थों होना तो फिर सानू जरूरत की है। मैं तो अपनी जिंदगी विच जिन्ना विचरिया कदे एक कौडी दा भी किसी कोई देवे। एक बार दास की परख की गई, मालपुर तो साध संगत एक सरदार आया जिसकी 600 किला जमीन सी यूपी दे विच,
ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਲ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਗੁਥਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਪਿੰਡ ਬਡਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ। ਦੂਸਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਗਏ ਸੀ ਕਿਤੇ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਰੱਖੀ ਉਸਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧੂ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਿਰੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੱਥਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਾਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਮਾਇਆ ਵੇਖੀ ਨਾ ਉਸ ਗੁਥਲੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ। ਮਾਲਪੁਰ ਦਾ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸੀ, ਬੜਾ ਰਹੀਸ, 3 ਉਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਸਨ। ਲਾਲ ਗੁਥਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਭਰੀ ਹੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਈ ਰਹੀ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਮਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ख्वाब आया, मैनू सुपन आया, इस करके मैं आप जी के पास आया। कित्थे जलंधर जिला बडियाला ते बडाला ते कित्थे अपना मालपुर बाड़ियाँ। वो माया उस तरह पई रही। साध संगत असी हाथ नहीं लाया। कमाल की गल है कि मेरे गुर भाई वो कहन लगे माया आपां नहीं वरतनी, आपां की करनी है, जिसकी माया वो आपे लै जाएगा। वो माया उत्थे पई रही। तीसरे दिन बंदा आया साध संगत, उन्हें जब देखा भी वो जिथे माया रखी उत्थे पई, वो सानू त्यागी समझ के बड़ा प्यार करन लग पिया। साध संगत असी उसनू कहा भी ये माया अपनी लै जा, सानू इसकी जरूरत कोई नहीं है। असी कोई कहंदा मैं तो तुहाडी परख कीती कि कुछ भी अपनी माया लै जा। साध संगत मैनू याद है कि वह इन्ना प्यार वधिया कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का सहज पाठ मैं उस दे घर विच पूरे 11 दिन मालपुर कोठी उहदी च कीता। उहदी भावना बनी, अखीर तक वो संगत करता रहा। मतलब कहने दा कि साडे नेम होने चाहिए। असी घरों निकले जे कपड़े माया जुत्तियां जां सानू ये मान अपमान ही ना छड्डे, काहदे साध हां असी। ना सुख विच गृहस्थ दे ते ना सुख छड्ड गया, सुख है विच विचार दे सतगुर शरण पिया। सो साध संगत ये नहीं कि ये माया दे त्याग दा होमे है। मतलब कहने दा कि जदों देखो ने स्थान चलता है या होर स्थान ब्रांचा ने अपनियां किते भी कोई आदान प्रदान कोई सेवा दे कारज हुंदे ने, सब चलते ने गुरु की कृपा दे नाल। सो कारण है कि आप जिन्ने भी रहन वाले हाँ या जिथे जिथे भी स्थान ने, सारियां नूं अपने मुखी या अपने अनुशासन की पालना करना साडा धर्म बनता। ये सारे दे सारे नेम आप जी ने सरवण कीते ने। बाकी आउण वाला आपां जिहड़ा नियम है साधुआं दा वो कल पढ़ांगे। जिहड़े स्रोते तुसीं लाइव सुन रहे हो, मैं बेनती करांगा कि तुहाडे घर दे विच तुहाडा मुखी जिहड़ा बजुर्ग है, माता है, पिता है, दादा जी है, दादी जी है, कोई भी हन, सानू उन्हां दे अनुसार अपने परिवार का सारा संचालन करना अच्छा लगता है। अपने माता, अपने पिता, अपने बुजुर्गों नूं सवेरे उठो नमस्कार करो। अस्थान दे मुखी नूं सवेरे उठो सत्कार करो। दिखावे मात्र नहीं, हिरदे चो। इस तरह की है कि साडी एक परिवारक रूप जिवें अस्थान या घर है, इहदे नाल साडी सारियां दी एकमिकता बनी रहिंदी। आपस विच एक दूसरे नाल सारे फतेह दी सांझ पाओ या सत श्री अकाल नमस्कार, बच्चियां नूं प्यार, इहदे नाल सारे दा सारा साडा आपसी प्यार बनिया रहिंदा। ये तुसीं जिहड़े इत्थे रहण वाले स्रोते हो, जगियासू हो, तुसीं भी सरवण कीता। जिहड़े घरां विच रह रहे ने उन्हां नूं भी असीं ये बेनती कीती है ताकि इस प्रकार दे नाल अपना जीवन बताओ। गुरु साहब कृपा करन, आप जी सरवण करते हो हर रोज़ निर्मल पंथ की गौरव गाथा। अति सत्कारयोग
ਗਿਆਨੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਠਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬੜੀ ਕਾਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੋੜ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਵੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸੁਖੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਜਤਾ ਆਵੇ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲਾਹਾ ਕੱਟੀਏ। ਇਤਨੇ ਕੁ ਵਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।